Congratulations to everyone for being a part of RE Series North. So this meeting is about the DSC, the Developer Student Club, the only technical club we have at our college. Uh, Actually, the club है हमारा ये गूगल की तरफ से एक endeavor है for promoting the development in the colleges of India. एंड अभी इस क्लब को स्टार्ट हुआ आई थिंक 2 years ही हुआ है. हमारे जो थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के, उन्होंने मिलकर इस क्लब को स्टार्ट किया था एंड इट्स प्रेटी न्यू. So this meeting is DSC Conclave 2.0, as you all have got the message about, and this is sort of an introductory about what we do, what we ought to do, and what are our visions and missions in the future. Okay, so over the course of meeting, what we will be discussing, let's look at that. First of all, we will give you an introduction of what our club is, what we have done, what our mission and vision is. Can you please turn off your mic, Rahul Sharma? Okay, whosoever is the admin, please turn off all the mics, people. Everyone is advised to turn off their mic until or unless they are asked to turn on it. Okay. So we'll be giving you an introduction about our club, the mission and vision of our club, the profiles means who is in the club, who is the leader, who are the members, who are the managers, etc. The events we have organized till now over the course of 2 years, the social platforms we are on, like our app, our website, and Instagram, LinkedIn, all those things. And what have we learned means especially for the second year students that are in second year now. We actually got classes from third year seniors and knowledge sharing and at the end a 15-minute discussion of from the students that what they know, what they aspire to know, etc. Okay. So as you can see on the slide, it's all pretty much written. There is no point in reading it, but I'll explain in short. So it is a technical club which is by the students for the students. Means इसमें हमारे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का कोई हाथ नहीं है. एक्चुअली 2-3 जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस क्लब को सपोर्ट करते हैं या फिर एड करते हैं, बट गवर्निंग बॉडी का कॉलेज में इसमें कोई रोल नहीं है. इट इज फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट. स्टूडेंट ने इनको क्रिएट किया था इस क्लब को, एंड वी ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स एंड ऑल द इवेंट्स that happen under this club. Okay, so why this club means a very viable question कि क्यों जरूरत पड़ी इस क्लब की. So हमारे कॉलेज में अभी तक टेक्निकल क्लब के नाम पे कुछ था नहीं, एंड DSC was the first thing that we have got in the name of any technical club. And in this fast changing world, I think means अगर कोडिंग या प्रोग्रामिंग को हटा दिया जाए तो we will be 100 years behind from where are we now. मीन्स जितनी प्रोग्रेस हम लोगों ने की है कोडिंग या प्रोग्रामिंग की वजह से. प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा एंड माइक, हम्बल रिक्वेस्ट. तो जितनी भी प्रोग्रेस की है कोडिंग या प्रोग्रामिंग की वजह से, इफ वी आर टू इग्नोर ऑल दोज स्टेप्स, तो हम लोग 100 ईयर इन दी पास्ट चले जाएंगे. सो you all can understand that how much important the coding and programming and all those things are for our future and for our present as well. Okay. And DSC is open for actually every student. ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT या CS के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं. Whosoever जो कोडिंग सीखना चाहता है, प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, कोई भी नई स्किल पे काम करना चाहता है, वेब डेवलपमेंट, IoT, एंड्रॉइड, ML, मशीन लर्निंग, एनी शॉर्ट ऑफ, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है. देयर इज नो बाउंड कि सिर्फ कोडिंग बैकग्राउंड के बच्चे या ITCS के बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे. एवरीबॉडी कैन ज्वाइन अस. व्हाट इज द मिशन ऑफ द DSC? तो जब क्लब स्टार्ट हुआ था तो इसका एक मिशन दिया गया था, कम टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर. मीन्स हम ही जितने भी लोग हैं, जितने भी आज या मीटिंग में प्रेजेंट हैं, या फिर जितने भी हमारे कॉलेज में और भी लोग हैं जो नहीं आ पाए मीटिंग में, वो सब साथ में आके एक कम्युनिटी बना के साथ में रहेंगे और साथ में ग्रो करेंगे विद द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
skills and ideas and what not. Okay, so means जैसे मुझे कोई स्किल आती है और आपको नहीं आती है तो मैं वो आपको सिखाऊंगा, और जैसे आपको कुछ आता है मुझे नहीं आता है तो आप वो मुझे सिखाओगे. So we can maintain a ecosystem balance amongst ourselves. Here we all are connected to each other and learn from each other. हम लोग एक दूसरे से connected है और एक दूसरे से ही सीखेंगे. Means yeah, basically. So these are the faculty members जो हमें support करते हैं. Coordinators हैं जो respected सुधीर गोस्वामी sir, he is an assistant professor of IT and CSS stream, and संतोष कुमार sir वो भी एक assistant professor है IT CSS stream के. And our senior coordinators कुमार सानू sir जो final year में है, विकास सर जो थर्ड ईयर में है, लीडर है हमारे, सौरभ सर जो अभी पास आउट हुए हैं एलुमिनाई, एंड अनुपमा मैम, शुभम सर, रजत सर, ललित सर, ये सब हमारे जितने भी हैं थर्ड ईयर के मेंबर्स हैं. और इनकी पोर्टफोलियो आप लोग देख सकते हैं, इनकी पोस्ट आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है. एंड नेक्स्ट विल बी द मेंबर्स. हमारी अभी जो टीम है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं और मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट है, जो आपसे अभी थोड़ी देर में इंटरेक्ट करेंगे. There is me, I am the member of the DSC club, and then there is Rishabh sir, Durgesh sir, you all can see. और ये अभी सभी लोग आपसे थोड़ी देर में कांटेक्ट करेंगे या फिर कुछ आपको बताएंगे नई नई स्किल्स के बारे में, जो कि हमारे इस वेबिनार का मिशन भी है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इवेंट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वी हैव ऑर्गेनाइज्ड मैनी मोर इवेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 2 years. तो क्या क्या इवेंट थे वो एक्चुअली एक अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे शायद 3-4 इवेंट ऑर्गेनाइज कराए थे. इट वाज कोड दी कोविड, हेड अप योर सी, एंड इन इट कोड. 3-4 इवेंट ऐसे करके हमारे लॉकडाउन के पीरियड में हुए थे. इन द लास्ट ईयर इन नवंबर और दिसंबर आई थिंक हमारा एक हैकाथॉन हुआ था, ऑल इंडिया हैकाथॉन. उसमें भी डीएससी मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल था. मींस दे ऑल वर कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, एंड या कॉलेज भी था उसमें. एंड वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक सीरीज ऑन पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग क्लासेस, ब्लॉक सीरीज ऑन सी वीकली, एंड डीएससी ब्लेंड क्लासेस ऑन बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल. और जब हमारा कॉलेज ओपन होगा मे बी या जैन या फेब में, जब भी होता है तो हम लोग भी आपकी क्लासेस लेंगे. जैसे हम लोगों के सीनियर्स ने फ्रॉम थर्ड ईयर दे हैव टेकन आवर क्लासेस to explain the basics to us. Means C की क्लास हुई थी, HTML CSS का बेसिक्स उन्होंने क्लियर किया था when we are in college. मींस अगस्त सितंबर की बात होगी. So अभी तो कॉलेज खुलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जब भी खुलेंगे तो we will surely take your classes. And actually the motto is that only कि हम आपके साथ मिलके आपको ही सिखाएंगे और आपसे भी कुछ सीखेंगे. So Rishabh, you wanna take on? So, a very pleasant and warm good morning to everyone present here. So, as you can see on slide that it's written as social platform. So, our DSC club is also present on social platforms like Google and Play Store. तो हम लोग एक ऐप भी रिसेंटली उन्होंने बनाई है, जो कि विकास और कुमार सानू सर का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा था. तो हम लोग को पता है जैसे कोई भी कंपनी हो या कोई भी हम लोग का छोटा बड़ा बिजनेस हो, तो वो तभी वर्क करता है अच्छे से जब वो सोशल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो. तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएससी क्लब को भी सोशल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल कराया है. आप लोग प्ले स्टोर पे चेक भी कर सकते हैं, डीएससी बिजनौर नाम से हम लोग की ऐप भी है. तो वहाँ पे अगर आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको जितने भी हम लोग इवेंट्स कराते हैं या वर्कशॉप्स कराते हैं वहाँ पे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और हम लोग की एक वेबसाइट भी है डीएससी बिजनौर नाम से, वहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे. तो अब व्हाट वी लर्न, अब तक हम लोग ने क्या क्या सीख चुके हैं. तो हम लोग ने डीएससी जितने भी मेंबर्स हैं अभी तक हम लोग की गिट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि इन सब की अभी तक हम लोग की वर्कशॉप भी हो चुकी है. और हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो इनिशियली हम लोग को जितने भी सीनियर्स है सेकेंड ईयर के जो थे और थर्ड ईयर के थे, उन्होंने हम सबको इन सब के बारे में नॉलेज दी थी. और आगे चल के ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन चीजों को सीखते रहेंगे. हम लोग अभी एमएल भी सीखेंगे आगे जाके, एआई सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस होगा आगे जाके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभिषेक.
और अभी किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये गिट क्या है, एचटीएमएल सीएसएस क्या है, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बट आपको नाम तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे काम करने वाले हैं या क्या हम लोग सीखेंगे। अब बेसिकली द आईटी स्टूडेंट्स मींस सी और ई वालों को तो गिट से इतना मतलब नहीं होगा आई थिंक, बट जो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको तो गिट पे काम करना ही होगा। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, वी विल गेट टू दैट। Yeah. So coming to the section knowledge sharing. Okay, this is what is computer Knowledge sharing actually. knowledge sharing. So the first point is information technology, that is IT. So a lot of students must have taken in IIT. तो आईटी सेक्शन में आपको पता ही है जैसे कि बेसिकली हम लोग कंप्यूटर और कोडिंग के बारे में ही पढ़ना है। तो अब उसमें जितनी भी चीजें हैं वो So actually what we are trying to tell here is कि जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं, आईटी हो गई, सीई हो गई या इलेक्ट्रिकल हो गई, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड टू कोडिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच जो है वो कोडिंग से दूर है या फिर कोडिंग का उसमें कोई मेजर रोल नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम उठा लो, कोई भी उठा लो, सिविल इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपके सिमुलेशंस रन होते हैं, जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने होते हैं वर्चुअली, वो सब आपके सॉफ्टवेयर से पे ही बनेंगे। उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए। एंड एज वी से इन द 21st सेंचुरी, डेटा इज द रियल किंग। मीन्स जिसके पास डेटा है वो किंग है। तो डेटा, अगर आप डेटा के साथ खेल रहे हैं तो आपको डेटा हर स्ट्रीम में मिलेगा, नो मैटर इन विच स्ट्रीम यू आर, वेदर इट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एयरोस्पेस, आप जिस भी स्ट्रीम में, आपको डेटा तो देखना ही पड़ेगा। और द बेस्ट वे टू, द एफिशिएंट वे टू मैनेज डेटा इज व्हाट वी लर्न इन कंप्यूटर साइंस और आईटी स्ट्रीम, और बेसिकली द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग पार्ट। तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स तो हम वहां पे देखेंगे ही, एंड हाउ टू मैनिपुलेट डेटा, हाउ टू टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यही पर्पज है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी या सीएस वाले ही कोडिंग सीखें। जितने भी आप लोग हैं, जिसको भी इंटरेस्ट हो, जिसको भी आगे, एंड कोडिंग इज मतलब ऐसा नहीं है कि बर्डन बनेगा, आपको एक नई स्किल ही आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी। एज वी ऑल नो कि जॉब्स की कितनी स्कार्सिटी है, बट आईटी स्ट्रक्चर में एक्चुअली बूम आने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। सो अगर आप ये सीखते हैं तो द बेनिफिट इज योर्स ओनली। ओके, and so Vipul Kumar will explain about this slide. Vipul. यस सर, मैं पीपीटी से नहीं, एक जरा उससे हिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो आप ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा बंद कर दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली अभी काफी लोगों काफी को पता चल गया है कि क्यों सीएस वालों, मतलब आईटी वालों को, सिविल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को जरूरत है प्रोग्रामिंग सीखने की। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे कंप्यूटर आया, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी। तो ये पार्ट हिस्ट्री का है, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो कुछ लगे ना। तो स्टार्टिंग हुई थी इसकी सबसे पहले अबैकस इन्वेंट हुआ था, जो एक तरीके से कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए यूज होता था। जैसे एडिशन कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर लिया, और वो भी सिर्फ जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं साइड में, उससे करते थे हम। एक बीट्स होती थी, उनको यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते थे। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की, कह सकते हैं। और ये बेबीलोनिया में स्टार्ट हुआ था, और बेबीलोनिया एक जगह का नाम है जो कि इस टाइम पे इराक में। तो उसके बाद 300 बीसी में पिंगला इन्वेंटेड बाइनरी सिस्टम, और जो आचार्य पिंगला थे वो अपने इंडिया के थे, जो एक संस्कृत
your mic. Akash In Singh, the please close your 1990s, mic. 320 में बाइनरी सिस्टम इन्वेंट हुआ था, जो कि आचार्य पिंगला ने किया था। और देन उसके बाद 1680 में हीरोइन ऑफ अलेक्जेंड्रियन ने इन्वेंट की थी मशीन, जो कि जैसे कि जो टेस्ट था उसमें सिर्फ हम ये जैसे एडिशन कर रहे हैं तो केवल एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी जिसमें हम एक साथ कई ऑपरेशन कर सकते थे। और उसके बाद 1492 में जो लियोनार्डो दा विंची थे, जो कि फेमस पेंटर थे, उनका भी इसमें योगदान है। अब वो लोग सोचेंगे कि पेंटर का कैसे योगदान है, तो उनकी काफी पेंटिंग्स थी, वो काफी नॉलेज पर्सन थे, उन्होंने एरोप्लेन्स की पेंटिंग वगैरह बनाई। तो उसके बेसिस पे भी टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हुई। उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर और फर्स्ट प्रोग्रामिंग रोबोट्स में भी हेल्प की थी। और उसके बाद 1942 में ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड पास्ट लाइन मैस्कुलिन एडिंग मशीन। उन्होंने जो ब्लेस पास्कल थे, उन्होंने इन्वेंट की एक पास्ट लाइन मशीन, जो कि एक मैकेनिकल थी, मतलब कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से नहीं चलती थी, वो ऐसे ही हाथों से चलती थी, मतलब उसे हाथ से चलाना पड़ता था, कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो उसको खुद से करना पड़ता था। उसके बाद 1822 में द एनालिटिकल इंजन इन्वेंट हुआ, जो कि चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन था जिसमें ये हम एनालाइज कर सकते थे कि क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे। और उसके बाद 1835 में सैमुअल मोर्स ने इन्वेंट किया मोर्स कोड। मोर्स कोड एक तरीके से टेली टेली मतलब जैसे जो टेलीफोन होता है उसमें मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे। मतलब एक तरीके से कोड होता था, जैसे कि जैसे हमें मैसेज भेजना है कि कोई किसी का नंबर है, तो हमने टैप कर दिया 2-3 बार, मतलब वो उन्होंने कोड इन्वेंट किया था। तो उसके बाद 1882 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, जो कि टेलीफोन को इन्वेंट किया, जिसे हम फोटोफोन भी कहते हैं। और उसके बाद 1895 में रेडियो सिग्नल इन्वेंट किए गैलीलियो मार्कोनी। तो गैलीलियो मार्कोनी का भी काफी योगदान रहा। ये इटालियन इन्वेंटर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, और इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन बनाया, जिससे अब ये चीजें कंप्यूटर के लिए कैसे योगदान है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो वो भी आपको समझना है। लेकिन उसके बाद 1895 के बाद 1911 में आईबीएम आया। और आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन है, जो कि अमेरिका की है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस बनाई, मतलब जो आज हम स्टोर कर पा रहे हैं इतना डेटा, वो सब आईबीएम का मतलब हाथ है उसके पीछे। इन्होंने हार्ड डिस्क बनाई, फ्लैश ड्राइव बनाई, तो वो सब आईबीएम ने बनाया। और उसके बाद 1982 में एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन का जन्म हुआ, जो जिनका नाम था एलन टर्निंग। तो उन्होंने भी काफी योगदान दिया, वो मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद 1924 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीविजन का इन्वेंट किया जॉन लॉगीबैन ने। तो ये जॉन लॉगीबैन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और जिन्होंने फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन बनाया था 26 जनवरी 1926 को। और he was firstly invented the first publicity demonstration color television system। मतलब तो अब टेलीविजन का भी काफी योगदान है, क्योंकि अगर टेलीविजन ही इन्वेंट नहीं होता तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन कैसे ना पाते। तो हर चीज का योगदान है, टेलीविजन का भी, रेडियो का भी, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो हम कैसे कनेक्ट कर पाते चीजों को। तो उसके बाद जो एलन टर्निंग थे, उन्होंने डेवलप की कॉन्सेप्ट ऑफ थर्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम, तो जो 1937 में हुआ। और ये थ्योरेटिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए इनका काफी बड़ा योगदान है कंप्यूटर में, क्योंकि उस समय तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैलकुलेशन करें कैसे, तो इन्होंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया कंप्यूटिंग के लिए। और फिर 1939 में
एचपी आई, जिसे कि हम सब जानते हैं एचपी, जिसको हॉलवेट पैकर्ड कंपनी कहते हैं। ये अमेरिकन इंजीनियर ने बनाई थी, दो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मिलकर। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की स्टार्ट में अपना योगदान दिया। और उसके बाद एक जो अलाउन टर्निंग थे, उन्होंने कोलेसस मशीन को बनाया। अब ये कोलेसस मशीन क्या होती है? ये एक तरीके की डिजिटल कंप्यूटर था उस टाइम का, और ये ट्यूब्स पे वर्क करता था। जैसे कि कोई और कैलकुलेशन करनी है तो उस टाइम पे कुछ जैसे अबेशस में बीट्स का प्रयोग करते थे, ऐसे इसमें ट्यूब्स का प्रयोग करते थे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो इसके बाद 1949 में क्लैड सेमंस ने फर्स्ट मशीन बनाई जो चेस खेल सकती थी। अमेरिकन मैथमेटिशियन थे वो, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, और उन्होंने डिजिटल सर्किट्स बनाए जिसकी मदद से वो कंप्यूटर में काफी योगदान आया, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने थ्योरेटिकल चीजों को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया। तो इसलिए उसके बाद 1950 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जो कि जापान ने बनाया था। और देन 1955 में आईबीएम के टोटल 19 आईबीएम काफी जैसे कि आईबीएम का काफी योगदान रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टोरेज डिवाइसेस बनाए, क्योंकि आज के बिना स्टोरेज डिवाइस से कुछ हो नहीं सकता था। तो 1953 में काफी पॉपुलर हो गई आईबीएम इस काम के लिए। और उसके बाद एक जीएम कंपनी थी जो कि जनरल मोटर कह सकते हैं, और उन्होंने रोबोट्स पर वर्क किया कि मतलब रोबोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर। और देन 1964 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसिंग के काम में काफी हेल्पफुल रहा। और 1917 में इंटेल आया जिसने रैम वगैरह का इन्वेंशन किया, डायनेमिक रैम, जिससे हम जैसे कि जो स्टोरेज डिवाइस थे जो आईबीएम ने बनाए थे उस टाइम पर, वो उनमें डेटा स्टोर करने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो रैम बनी उसमें हम डेटा चेंज कर सकते थे। उसके बाद ईमेल आया जो कि रे टॉमसन ने इन्वेंट किया 1971 में। और उसके बाद अटारी रिलीज ऑन द फर्स्ट कमर्शियल वीडियो गेम। और अटारी एक कंपनी है वीडियो गेम्स की, तो उसने पहला फर्स्ट कमर्शियल वीडियो गेम बनाया। वो एक काफी गेमिंग पर्पस के लिए काफी बड़ी कंपनी थी। तो उसने 1972 में वो फर्स्ट गेमिंग कमर्शियल गेमिंग वीडियो बनाया था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, जिसे हम सब जानते हैं, बिल गेट्स ने फाउंड किया। तो Hello, people. yes, I'm continuing. Bill Gates said, yes, I'm saying. Actually, when you told that there was your live is not clear, so you can try to reconnect and take it further. So hello everyone once again. So अभी जैसा हमारे मेंबर ने बताया, विपुल ने, कि what was the history of computer means, अभी विपुल, you want to continue? Yes, we will continue. There was a network issue. Okay, no problem. Hello. Yes, you are audible now.
you can start. ओके ओके। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन हुआ जो कि बिल गेट्स ने किया था। अमेरिका के एक पॉपुलर बिजनेसमैन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। और 1976 में एप्पल आया जो कि स्टीव जॉब्स ने इन्वेंट उसके कंपनी के फाउंडर थे। या और देन 1977 में एप्पल ने कंप्यूटर्स बनाए जो कि कलरफुल ग्राफिक्स पर वर्क करते थे, क्योंकि उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम था। क्योंकि जो स्टीव जॉब्स ने और बिल गेट्स ने जो कंप्यूटर्स बनाए थे वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के थे, लेकिन जो 1977 में कंप्यूटर बना वो कलरफुल कंप्यूटर था। तो 1979 में मिलियंस मतलब काफी कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, तो काफी लोगों ने उसको खरीदा कि क्योंकि उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी, तो इसलिए काफी सेल भी हुई उन चीजों की। फिर उसके बाद 1982 में एक कॉमरेड 64 नाम की एक डिवाइस आई जो कि कैलकुलेटिंग पर्पस में काम आती थी। मतलब कि जैसे जो शॉप्स होती हैं उनमें अकाउंट्स में डेबिट वगैरह करने के लिए कि मतलब कितना जैसे एडिंग पर्पस के लिए थी वो मेनली करते हैं हम। तो उसके बाद 1985 में निकोला एंटरटेनमेंट ने एक डेबिट मशीन बनाई उन्होंने भी, और वो भी उसका भी सेमी पर्पस था। और उसके बाद चेंज हुआ एकदम से पूरे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि 1991 में वर्ल्ड वाइड ने एंट्री ली। और वर्ल्ड वाइड की एंट्री का मतलब था कि इंटरनेट से जुड़ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से जो आज हम सब हैं इसमें कनेक्ट हो पा रहे हैं आपस में, तो ये सब वर्ल्ड वाइड की वजह से था। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड की एंट्री नहीं होती तो मे बी पॉसिबल है कि जो हम लोग आपस में इतनी दुनिया से इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते इतनी फास्ट इतनी जल्दी। तो उसके बाद 1998 में गूगल का गूगल फाउंड हुआ, लैरी पेज ने फाउंड किया उसको। और देन 2002 में 2002 में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन पीसी सोल्ड। मतलब कि 2002 तक 1 बिलियन से भी ज्यादा कंप्यूटर सोल्ड हो चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड का एंट्री भी हो चुकी थी और माइक्रोसॉफ्ट भी आ चुका था, तो इसलिए काफी एकदम से मार्केट में उछाल आ गया था उस टाइम पे। और फिर 2004 में फेसबुक की और एंट्री हो गई, तो फिर आप समझ सकते हैं फेसबुक के कितने यूजर हैं, जो कि मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट की थी फेसबुक को। और ट्विटर की भी फिर एंट्री हुई 2006 में, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है। और 2010 में एप्पल ने आईपैड लॉन्च किए, जो फर्स्ट आईपैड लॉन्च हुआ था वो 2010 में हुआ था। और उसके बाद फिर 2012 में क्रोम आ गया, और क्रोम के आते ही सारी चीजें एक तरीके से हाथ में आ गई, क्योंकि क्रोम बट कंप्यूटर्स और मोबाइल्स दोनों में ही वर्क करता था। तो ये रही मतलब कंप्यूटर की जर्नी रही है, क्योंकि हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कैसे चीजें आई हम तक, जैसे कोई चीज पहुंच गई है तो कैसे पहुंच रही है। तो थैंक यू अक्षय सर, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली अभी हम लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी, दैट कहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे और आज प्रेजेंट एरा में कहाँ पे हैं, एंड इन फ्यूचर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव, जो हम लोग आगे जा सकते हैं या अचीव कर सकते हैं विथ अवर करंट कंप्यूटिंग पावर। सो आई वुड लाइक टू ऑफ द टॉपिक टेल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू यू गाइस, मींस जिससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड, इन कोडिंग वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड, टू से more precisely. So I heard this somewhere and I think that it's sort of true, क्योंकि अभी मैंने गूगल सर्च भी किया and it is showing that कि हाँ ऐसा होता है। So the story is as we all know कि इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट में मतलब सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो कंट्री है वो इजराइल ही है। हमेशा उसके ऊपर मीन्स अटैक का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। सो इजराइल के किसी बॉर्डर पे जो ईरान से लगा हुआ है, व्हाट दे डू इज मतलब मिसाइल्स जो आती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए जो हमारा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। सो इजराइल में व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एम्प्लॉयड गेमर्स, मतलब 15-16 साल के बच्चे जो गेमिंग कर लेते हैं, जिन्होंने गेमिंग में कुछ किया है,
या जिनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, उन्होंने उनको लिटरली एम्प्लॉय करके रखा है टू टू डिप्लॉय एंड सेंस भी, मतलब जो एनिमी मिसाइल्स आ रही होंगी उनको सेंस करने के लिए और उन्हें हवा में ही उनकी ट्रेजेक्टरी में मार्क करने के लिए और हवा में ही उनमें मतलब जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उससे अटैक करने के लिए। मींस गेमर्स कंट्रोल द मिसाइल जो इजराइल से जाएगी उस मिसाइल को हवा में रोकने के लिए। सो यू कैन सेंस की कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर डिफेंस, फॉर द इवोल्यूशन, फॉर ऑल दोज थिंग्स, द कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग। एंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो आई डोंट थिंक कि पॉसिबिलिटी है, मींस आई एम ऑल फॉर दैट कि हो भी सकता है। यू मस्ट ऑल मस्ट नो इलॉन मस्क, राइट? Elon Musk, the CEO of SpaceX, the founder of PayPal, and the richest entrepreneur, not the richest but one of the richest. So what he says and what he believes is actually कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इट्स नॉट रियल, इट्स अ सिमुलेशन। सिमुलेशन मीन्स यू ऑल हैव प्लेड PUBG. Yeah, someone is mentioning Tesla, also the founder of Tesla. My bad. So you all have played PUBG. सबने नहीं खेला, कुछ ने खेला होगा, एंड मींस गेम्स तो सबको आइडिया होगा कि हम लोग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मींस PUBG जिसने खेला उनको पता है कि हम उनसे शूटिंग करवा सकते हैं, उनको हर्ट होता है तो मींस वो हील कर सकते हैं विथ मेड किट एंड व्हाट नॉट। तो मींस एक तरीके से हम लोग अपने कैरेक्टर को, जो हमारा कैरेक्टर है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। So the idea that Elon Musk elaborates, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं बाय द फिलोसोफर्स, कि that we are living in a simulation, means जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, या फिर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग अस बाय द कोडिंग। मीन्स जो हम लोग के जितने भी एक्शंस हैं, हम लोग जो भी रह रहे हैं इस वर्ल्ड में, दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इनसाइड अ कंप्यूटर एंड वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय कोडिंग। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया। सो मीन्स आप लोग, ये सब इसीलिए है बताने के लिए कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लगे कि व्हाट वी कैन एक्चुअली अचीव थ्रू कोडिंग। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अभी आप लोग वीडियो गेम्स देख ही सकते हैं कितने ज्यादा रियलिस्टिक वीडियो गेम्स बन सकते हैं, और कितने ज्यादा मतलब AR VR कितना ज्यादा अभी ट्रेंड में है। तो अगर इसी रेट से हम लोग आगे बढ़ते रहे और प्रॉस्पर करते रहे, तो आई डोंट थिंक द डे इज वेरी फार, मे बी आफ्टर फ्यू सेंचुरीज, कि हम लोग एक ऐसा वर्ल्ड बना पाए जहाँ पे हम लोगों की एक अलग प्लेनेट हो, जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो। एंड ऑल दैट ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग पावर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी प्रोग्रामिंग वर्क करती है ऑन ऑल दी लेवल्स। हमको भूख लगी है तो हमको कैसे पता चलता है कि खाना खाना है, भूख कैसे लगी ये कैसे पता चलता है? दीज ऑल थिंग्स आर प्रोग्राम्ड इनटू आवर माइंड। मींस भूख लगी है तो खाना खाएंगे तो भूख बंद हो जाएगी। तो ये क्या एक तरीके की प्रोग्रामिंग है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा करेंगे तो वो चीज रुक जाएगी। अगर ब्लड निकल रहा है तो वहां पे क्लॉटिंग होगी तो ब्लड आना बंद हो जाएगा। दीज ऑल थिंग्स आर कोडिंग, दीज ऑल थिंग्स आर प्रोग्रामिंग, जो हमारे बायोलॉजिकली लेवल पे हमारे अंदर एम्बेडेड है। सो this is what coding can do, and this is the power of coding and programming, and which we can harness in future. So back to the topic जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि how civil and electrical depends on computer. So basically मैंने बताया था कि डेटा जो हमारा enormous value का है, and data can control each and every part around the world, each and everything around the world. जो हमारी डिफेंस इंफॉर्मेशन होती हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर अटैक्स के जो की कोड्स होते हैं, ऑल दैट थिंग इज डेटा। तो उस डेटा को हार्नेस करने के लिए, उस डेटा का एक्चुअल यूज करने के लिए, वी नीड द कंप्यूटिंग पावर, वी नीड द प्रोग्रामिंग पार्ट। ओके, एंड सो नाउ वी कम टू द टॉपिक, व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब सब लोगों ने, सबने नहीं तो मोस्टली ने सुना ही होगा कि वी नीड टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं इनको, या हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब स्कूल में किसी ना किसी लेवल पे आपने ये सब चीजें तो सुनी ही होंगी। सो बेसिकली ये होती क्या है? काफी को तो यही कंफ्यूजन होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या, मतलब क्या कोई भाषा होती है, इंग्लिश हिंदी की तरह सीखना पड़ेगा, क्या होता है? तो जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे जो मीडियम है मेरा इंटरेक्शन का, इंग्लिश और हिंदी का, मीन्स आपको पता है इंग्लिश में मैंने अगर कुछ भी बोला तो आपको उस वर्ड का मतलब आपके दिमाग में पता है कि हाँ इंग्लिश में इसने दिस दैट जो भी वर्ड बोला है तो उसका दिमाग में मतलब एम्बेडेड है, और मैं उसको सेंस कर लूंगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगर हिंदी में कोई वर्ड बोला है तो आप उसको सेंस कर लोगे, आपके अंदर वो चीज प्रोग्राम है।
फ्रॉम द पास्ट 18-19 ईयर्स, जितनी भी एज है आपकी, कि अगर एक ये वर्ड बोला जा रहा है या कोई एक्शन किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है। मैंने बोला माइक बंद करिए, तो आपको पता है कि कहाँ का माइक बंद करना है, कहाँ पे वो बटन है, और माइक का मतलब क्या होता है, बंद का मतलब क्या होता है, करो का मतलब क्या होता है। सो ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, दीज ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के इवोल्यूशन का हमें कुछ नहीं पता है, 2 मिलियन 3 मिलियन, वी डोंट नो एनीथिंग। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर भी एक तरीके से हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड ही है उस छोटे से बॉक्स के अंदर। सो हाउ डू वी कम्युनिकेट टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड, हम उस वर्चुअल वर्ल्ड तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाए और उससे अपना काम कैसे करवा पाए। दिस इज वेयर द लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स इन। सो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। द फर्स्ट लैंग्वेज आई थिंक जो आई थी, दैट वाज Fortran. Actually, I don't know the full form actually. So the first language थी Fortran, and what the Fortran did was, and one more important thing before going there. So क्या होता है, जब जो भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। कंप्यूटर नोज नथिंग एल्स, मीन्स जो एलिमेंट्री लेवल पे, जो बेसिक लेवल पे, जैसे हम लोगों को ABCDEFGH पता है, अगर मैंने मैट बोला है तो MAT, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है हमारा वर्ड मैट। ऐसे ही कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 समझ में आता है, उसके अलावा नथिंग एल्स। आप उसको जो भी बोलो, आप उसको जिस भी लैंग्वेज में बोलो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें कोडिंग कर लो, द कंप्यूटर नोज ओनली 0-1। 0 मीन्स ऑफ स्टेट, 1 मीन्स ऑन स्टेट, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स हेयर, 1 मीन्स देयर। सिर्फ कंप्यूटर को इतना ही पता है। तो व्हाट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज इज, इट बिल्ड्स एन इंटरफेस बिटवीन अस एंड द वर्चुअल वर्ल्ड, जो कि कंप्यूटर के इनसाइड है, जो कि हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिसके भी जो भी यूज करें आप, उसके इनसाइड होगा। सो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा इन मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है 0s and 1s, एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर, एंड देन जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसको 0s and 1s में रिजल्ट आएगा कंप्यूटर के पास, वो उसको फिर हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इट विल शो टू अस द रिजल्ट, जो भी फाइनल रिजल्ट हमारा आया है हमारी लैंग्वेज में। जिस लैंग्वेज में हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर हमको रिटर्न करेगा जो भी हमारा रिजल्ट आया है। बट बेसिक लेवल पे जो काम होगा वो होगा 0s and 1s में। ओके, सो वी यूज मैनी लैंग्वेजेस एंड दीज ऑल आर एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल मतलब इंग्लिश का इनमें बहुत ज्यादा, मतलब इंग्लिश ही होती है मेन जो होती है, और जो बेसिक लेवल पे हमें 0s 1s लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अर्लियर लैंग्वेज आई थी फोर्ट्रैन, उसमें जो कोडिंग करनी पड़ती थी, दैट वाज ऑल 0s and 1s। एडा लवलेस, जो अभी आपने स्लाइड में देखा होगा, शी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो जो भी कोडिंग उस टाइम होती थी वो 0s and 1s की फॉर्म में होती थी। अगर उनको कुछ भी लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, फ्रेंच में, जर्मन में, जो भी लिखना है, उनको 0 और 1 में ही कंप्यूटर में लिखना पड़ता था, और कंप्यूटर उसी में आउटपुट देता था। और वो ह्यूमंस का काम होता था कि इनपुट हम 0s 1s में दें, और आउटपुट जो निकल रहा है 0s 1s में, हम उसको इलेबोरेट करें, उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से अंडरस्टैंड करें कि क्या आउटपुट आ रहा है। बट अब बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस में रन करते हैं, एंड ऑल द लैंग्वेजेस जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। एक्चुअली HTML लैंग्वेज नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। HTML इज नॉट अ लैंग्वेज, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। वील गेट टू दैट लेटर ऑन, जब वेब डेवलपमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दीज आर ऑल दी लैंग्वेजेस जो हम लोग यूज करते हैं, C++, PHP, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, गो, रूबी, पर्ल, ऑल दोस लैंग्वेजेस। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, या पाइथन सीखनी है आपको, या C++ सीखनी है। आपको जिस लैंग्वेज से स्टार्ट करना है आप उस लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपको इसी लैंग्वेज में जाना है, या फिर ये लैंग्वेज बूम पे है, या फिर बेसिकली जितने भी हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं प्रोग्रामिंग के, इन कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होते हैं। अगर एडिशन हो रहा है PHP में, तो वही एडिशन C++ में भी होगा। एडिशन के रूल्स नहीं चेंज होंगे। तो जो कोर लैंग्वेज है, लूप्स हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है जितनों को भी, तो जितने भी हमारे कोर प्रिंसिपल्स होंगे वो सारी लैंग्वेजेस में सेम होंगे। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और आपको ही ट्रॉमा होगा कि कौन सी लैंग्वेज सीखें, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। स्टार्ट विथ वॉट एवर लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड, वॉट एवर लैंग्वेज यू कैन प्रोग्राम इन। जिस भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं आप उसी लैंग्वेज में करें। ओके, और एक्चुअली एंड में हम लोग का एक 15-20 मिनट का एक डिस्कशन राउंड होगा। तो जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, या जो भी हमारे मेंबर्स बाकी बोल रहे हैं, अगर आपको किसी में भी डाउट हो, या किसी में भी कोई भी इंट्रीग हो कि मुझे ये जानना है इसके बारे में, कोई
curious हो तो please ask questions, please. Okay. So I think we'll start with Android development. Ankit, you can begin. Okay. Thank you, sir. First of all, good morning to everyone. मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐप्स के बारे में। तो एप्लीकेशन एक्चुअली आप जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो Excuse me, Ankit sir. Hello. Sir, your voice is not clear. okay. You should try to reconnect it. No, my voice is audible. Hello. Yeah, you are audible now. Okay. तो हम बात कर रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशंस एप्स क्या होती हैं। तो अब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्क करने के लिए कोई भी काम करने के लिए एक हमारे पास एप्लीकेशन होता है डेली लाइफ यूजेस के अकॉर्डिंग। आप जैसे सुबह उठते होंगे, मैक्सिमम उठते ही मुझे जहां तक उम्मीद है सब लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं कि किसी का मैसेज आया कि नहीं। तो ये सारी चीजें डेली लाइफ के लिए होगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पे मीट का यूज कर रहे हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा सेशन चल रहा है वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो एक एप्लीकेशन है। और बाकी की बात करते हैं, आपका अलार्म क्लॉक हो गया मोबाइल फोन में, आपका फेसबुक एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी डेली लाइफ के यूसेज का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात होती है ये कैसे बनाई जाती हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक सिस्टम्स होती हैं जिसपे हम वर्क करते हैं। जैसे हमारा एंड्रॉइड फोन्स हो गया, iOS जिसे आप एप्पल के नाम से जानते हैं, और हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हमारा विंडोज, मैक, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारी चीजें रन होती है। तो हमारे जो एप्स होते हैं तो इन पर्टिकुलर सिस्टम्स पे वर्क करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, तो हम बात करेंगे सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की। तो एंड्रॉइड फोन्स में जो एप्लीकेशंस बनती हैं, तो एंड्रॉइड जो डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलरली कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे हमारे पास कोटलिन है, डार्ट, जावा, C++। मैक्सिमम लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे C++ जानते होंगे आप लोग, जावा भी सुना होगा, कोटलिन बहुत कम सुना होगा, और ये डार्ट लैंग्वेज जो है अभी जस्ट 2 महीने के 2 ईयर पहले लॉन्च हुआ है, जो फ्लटर SDK द्वारा डेवलपमेंट किट है जिसके थ्रू ये हम वर्क करते हैं। ठीक है। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हम वर्क करते हैं कि हमारे डेली यूसेज में देखा जाता है कि क्या यूजफुल है, और उसके रिगार्डिंग में हम लोग वर्क करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा ही डेवलपर स्टूडेंट क्लब, तो इसके थ्रू हम अब क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हम अपना इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते थे। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे स्टूडेंट्स नहीं ऐड हो पाते हैं, या फिर किसी तरीके से हम पोस्टर्स वगैरह से कॉलेज में इन्फॉर्म करते थे तो भी नहीं हो पाता था। पर अब अगर डेली लाइफ यूज के लिए था कि हम जो भी चीज कर रहे हैं बट स्टूडेंट से अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज हम अरेंज कर रहे हैं, वेबिनार सेशन जो कुछ कर रहे हैं, वो किसी भी स्टूडेंट्स तक मैक्सिममली पहुंचे। तो उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हम जनरेट करते हैं ताकि वहां पे सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहें, अब और जो है उन्हें हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके लिए एक ऐप डिजाइन हुआ जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, DSC REC बिजनोर के नाम से। तो वहां पे जो भी सारी इवेंट्स होने होते हैं और कॉम्पिटिशन वगैरह होने होते हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स आपको वहां पे मिलती रहेंगे। और तो बात कर रहे थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, तो हमारे पास फ्लटर SDK होता है डार्ट लैंग्वेज में, जिस एक डेवलपमेंट टूल किट होती है। अगर किसी को कुछ इशू होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, अब उसका रिप्लाई कर देंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे फ्लटर SDK की, एक लैंग्वेज है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो फ्लटर डेवलपमेंट किट है जिसमें हमारा प्री बिल्ट होता है, जो पहले से बने हुए विडजेट्स होते हैं। विडजेट्स एक तरीके से आप कोई भी ऐप यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ऐप बार होता है,
वेब बार्स के अंदर टाइल्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं। आप उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी बात करते हैं। तो इसमें जो फ्लटर लैंग्वेज है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कोड लिखते हैं और उसी कोड से हम iOS मतलब एप्पल के और एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। बाकी क्या होता था, हमारे पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेजेस होती थी, जैसे पाइथन हो गई, C++ हो गया और C# होगी। बहुत सारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज थी, अलग थी। सिर्फ जो कि हम कोड लिखते थे वो सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए होती थी। और iOS की बात करते हैं तो iOS में हमारा स्विफ्ट लैंग्वेज होता था, तो हम स्विफ्ट यूज करते थे जिसके थ्रू सिर्फ iOS में वर्क करता था। और हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं कंप्यूटर में, जैसे हमारा विंडोज, मैक, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सारी चीजों को का एप्लीकेशन बनाने के लिए हम पाइथन, जावा, C#, ऑब्जेक्टिव सी, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेनली हम इसी चीज पे फोकस करते हैं। हमारे डेली यूसेज में हमारा जो है क्या क्या चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज हैं और उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम एक इजी वे बिल्ड अप कर सकते हैं ताकि हमारा जो काम हो जल्दी से जल्दी हो सके और हम अपने टाइम को बचा सके। इसके लिए हम जो है कई तरीके के एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं आप मैसेज सेंडिंग के लिए, तो आप मैसेज सेंडिंग के लिए आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग कबूतरों का इस्तेमाल करते थे किसी मैसेज को भेजने के लिए, तो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और फ्री ऑफ कॉस्ट तो था ही। पर अभी देखते हैं हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम बस एक क्लिक में अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो हमारे क्या होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, पर इनका एक बैक एंड एंड फ्रंट एंड का एक सिनेरियो होता है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं और हमारा जो भी काम होता है वो उस एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो फिर अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में हम फर्दर बात करते हैं। इफ इंटरेस्टेड आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर वेबिनार अरेंज कर दी जाएगी, आपको सिखाया भी जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं जो कि एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एथिकल हैकिंग को देखते हुए कि हैकिंग क्या होती है। तो हैकिंग से अब समझेंगे कि क्या होता है हैकिंग एक हिसाब से, कि हैकिंग इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट ए कंप्यूटर सिस्टम और ए प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड ए कंप्यूटर। हम कहना चाहें मतलब हैकिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर के डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं एक हिसाब से, या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ द ओनर या विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर। ये हमारे हैकिंग के प्रोसेस में आता है। अब जैसे सभी लोग हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो हैकिंग का अगर सिंपल तरीके से देखा जाए हैकिंग क्या होती है, तो हैकिंग का प्रोसेस ये होगा किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट के पर्टिकुलर डिवाइस को हम टारगेट करते हुए उसके डाटा को चुरा भी सकते हैं, उसके डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं और कई तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारे हैकिंग के प्रोसेस में आता है। तो बात करते हैं एथिकल हैकिंग। तो जो एथिकल हैकिंग होती है वो एक्चुअली होता है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, क्योंकि जो हमारे एथिकल हैकर्स होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट मतलब वो सर्टिफाइड होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्क करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक, उस कंपनी में बहुत अच्छा सा ग्रो कर रहा था कंपनी। तो एक्चुअली एक बार क्या होता है, मतलब एक स्टोरी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसका एक कोई कंपनी उसने लॉन्च की थी, वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। तभी एक हैकर की नजर उस कंपनी पे पड़ती है, तो उसके डाटा को हैक करके स्टोर कर लेता और उसे जो है ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुम इतने पैसे दो वरना मैं जो है तुम्हारे डाटा को लीक कर दूंगा या वगैरह वगैरह तरीके से। तो क्या होता है, जो ओनर होता है वो मना कर दिया,
कि जो है मैं डाटा नहीं, मतलब जो है पैसे नहीं दूंगा। तो क्या होता है कि हैकर बिजनेसमैन के जो ओनर होता है उसके बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है। तब ओनर के पास तो पैसे बचे नहीं, तो ओनर अपनी एम्प्लॉयज को पैसे देगा नहीं, और जिसकी वजह से उसके सारे एम्प्लॉयज चले गए और एम्प्लॉयज का भरोसा अपने ओनर से ऊपर चला गया। इस तरीके से बहुत लॉस होता है। तब क्या होता है, अगर वही बिजनेसमैन या फिर वही ओनर अपनी कंपनी के लिए एक एथिकल हैकर रखे, मतलब एक सर्टिफाइड हैकर जो कि उसके डाटा को प्रोटेक्ट करे। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब कि कोई भी हैकर अगर तुम्हारे सिस्टम पे पीक आउट कर रहा है, तुम्हारे सिस्टम में घुसने का प्रयास कर रहा है, हैक करने का प्रयास कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को नोटिस करके उसे रोकने का काम करेगा, जो एथिकल हैकर हो तो होता है। तो अब जब अभी बिजनेसमैन ओनर की बात कर लें तो एक सर्टिफाइड हैकर को ले लेता है। तो क्या करता है, उसे एक पेमेंट देता है, मतलब पे करता है कि तुम मेरे सिस्टम को इस बार से प्रोटेक्ट करोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो हैकर अटैक करता है तो जो एथिकल हैकर जिसको उसने हायर किया होता है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है, स्पाई करता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई बाहर से थ्रेट या कोई हैकिंग प्रोसेस तो नहीं हो रही है। तो उस थ्रेट को पता करके उसको डिसेबल करता है, ताकि जो है उसकी डाटा होती है उस कंपनी की या फिर डिटेल्स होते उसके एम्प्लॉयज के, वो किसी और के पास ना जाए और ना ही किसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो हमारे एथिकल हैकिंग में इस तरीके से काम होती है कि हम भी किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के फोन्स को या फिर किसी भी डिवाइसेस को टारगेट करके उसके डाटा को चुरा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट हैकर। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो जो डाटा होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से पैसे लेकर के अपने टारगेट से डाटा को चुराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्पाई, जैसे किसी को स्पाई कराना है किसी के ऊपर, कोई बिजनेसमैन है, उसके सामने कोई और दूसरा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जो पहला बिजनेसमैन होगा वो सोचेगा कि इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है और सारी चीजें क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है कि इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। तो उसकी सारी चीजों को गेन करने के लिए वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना कोई, कि जो है उसके स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए वो हैकर को जो है अपॉइंट करेगा, जो कि जिसे हम कहते हैं जो पैसे ले करके किसी पर्टिकुलर टारगेट के डाटा को चुराता हो या फिर उसके डाटा के साथ मैनिपुलेशन करता हो। तो वो जो है हमारा ब्लैक हैट हैकर होता है, पैसे लेकर के वर्क करता है। फिर व्हाइट हैट हैकर की बात करते हैं, जो कि एथिकल हैकर होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रह करके वर्क करता है। जैसे मैंने बताया था कि ओनर था एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसका डाटा लॉस हुआ तो उसने एक हैकर को रखा, वो हैकर पे किया जा रहा था, किस लिए, उस ओनर के डाटा को, कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को बचाए रखने के लिए। तो इस प्रकार के जो हैकर्स होते हैं उन्हें व्हाइट हैकर कहते हैं, कि मतलब पे तो किया जाता है उन्हें हैकिंग के लिए, पर किस तरीके से, एक ऑथराइज्ड वे होता है कि हाँ, कि मैं तुम्हें अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से वो किसी पर्टिकुलर टारगेट का डाटा मैनिपुलेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैकर की बात हुई। इसके बाद आते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर। तो नाम से ही पता चलता है ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर जो होता है हमारा ग्रे होता है। तो इसका मतलब जो ग्रे हैट हैकर होता है दोनों तरीके से वर्क करता है, कि मतलब जो है ऑथराइज्ड वे से भी वर्क करता है, ऑथराइज्ड वे से वर्क नहीं करता, सॉरी, अनऑथराइज्ड वे से वर्क करता है और पैसे भी लेता है। मतलब कोई भी एक हैकर होगा, जैसे मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा, कोई एक हैकर था किसी पर्टिकुलर कंपनी के डाटा को चुरा के वो पैसे की डिमांड रखता है कि जो है मैं इतने पैसे लूंगा तुम्हारे डाटा को तुम्हें वापस करने के लिए। फिर किसी पर्टिकुलर डाटा को स्टोर करके
हेलो, मेरी वॉइस जा रही है? एनीवन कैन आंसर? हाँ Yes, sir. हेलो यस सर। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही है ओके आवाज। सर योर वॉइस इज ऑडिबल। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम ग्रे हैट हैकर की। तो ग्रे हैट हैकर में बात कर रहे थे कि मतलब वही जैसे एक किसने लिखा है, हमारे हर्षवर्धन, जिन्होंने लिखा है चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक हिसाब से यही कह सकते हैं हम कि वो पर्टिकुलर जो ग्रे हैट हैकर होता है वो अपने टारगेट के डाटा को तो चोरी कर लेता है या फिर डिलीट भी कर सकता है। उसके डाटा को चोरी करके सीधे सीधे से ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे ये डाटा मेरे पास है, तुम मुझे इसके लिए पे करो, मैं तुम्हारा डाटा वापस कर दूंगा। तो हमारे ग्रे हैट हैकर में इस तरीके से इस तरीके के हैकर आते हैं, ठीक है। और अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो अब इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे उज्जवल सर एक्सप्लेन करेंगे। तो उज्जवल सर, यू कैन कैरी ऑन। Thank you, Ankit sir. Is my voice audible? Hello. यस सर। yes sir it is. यस आ रहा है। Okay. Good morning, everyone. My name is Ujjwal sir. So the trend is changing. So it is now about artificial intelligence or AI. So with AI, it is in simple terms machines and computers learning, thinking, and doing what human intelligence does. मतलब अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग को सब कुछ बता रहे हैं डीएससी कॉन्क्लेव 2.0 के बारे में, तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हमारी जगह रोबोट्स बैठ के ये सब बताएं। तो दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ। मतलब अगर आपने कभी गूगल पे सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप अपना सर्च कंप्लीट भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही पूरा आपका सर्च ऑप्टिमाइज होके आ जाता है। जैसे आप बस लिख ही रहे हो कि व्हाट इज, तो वो अपने आप ही कंप्लीट कर देता है टुडेज डेट, टुडेज बर्थडे, टुडेज इवेंट। तो वो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बाकी आप लोग यहाँ पे कोई आयरन मैन के फैन, टोनी स्टार्क को सभी Yes, लोग sir. जानते हैं यार, है ना। तो yes sir इसने yes इतनी sir बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई थी, एडिथ और जारविस। हाँ फिक्शनल थे, लेकिन यार उस चीज को इतने ज्यादा लोगों ने फैसिनेट किया कि इतने सारे प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स सभी उस चीज को बनाने में लग गए। इवन हमारी यूएस की मिलिट्री ने तो एक आयरन मैन सूट बनाया भी है। और जो हमारे फेसबुक के डेवलपर हैं उन्होंने तो एक जावेद जैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट अपने घर के लिए बना रखा है। हाँ वो बिल्कुल उसके जैसा तो नहीं है जैसा मूवी में दिखाया, बट है तो अच्छा ही। और अगर बात करी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो रोबोटिक्स और वेपनरी में उसका बहुत ज्यादा यूज है यार। सोचो अगर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अपने घर पे बैठे हों और हम ड्रोन्स की मदद से अपने बॉर्डर पे बैठ के अटैक करवा सकें, कितना आराम से हम कितनी सारी डेथ्स को बचा सकते हैं, अपने कितने सारे सोल्जर्स की लाइफ सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द Yes, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब रोबोटिक्स की जैसे बात करें तो आप लोगों ने सोफिया का नाम सुना है? यस सर, यस किसका? रोबोट सोफिया। यस सर। यस सर। तो सोफिया के बारे में आपको पता ही होगा कि वो एक ह्यूमन एंड्रॉइड रोबोट है, बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि टेक्नोलॉजी खुद ही सीखती है इंसानों की तरह। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे चीजें सीखता है, हम लोग को देख देख के, हम लोग से समझ समझ के। वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी यही काम है। वो भी जब हम कॉन्वर्जेशन उसके साथ करते हैं, कोई हम उसको टास्क देते हैं, तो वो अपने आप को हर बार बेटर परफॉर्म करवाती है। जब बात करें कि इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रहा है एआई का, तो यार सीधी सी बात है कि साइंटिस्ट भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जो कि ह्यूमन बींग्स को भी पीछे छोड़ सके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में रोबोट्स
क्या कहते हैं, रूल कर सकते हैं वर्ल्ड को। जैसे तुम लोगों ने काफी फिक्शनल मूवीज में भी देखा होगा, जैसे टर्मिनेटर है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। Yes, sir. बस। तो और अब आर्टिफिशियल तो वो इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे अब तुमने चिट्ठी रोबोट देखा होगा मूवी में, ठीक है। तो उसकी यही प्रॉब्लम थी कि उसमें इमोशंस नहीं थे, बट धीरे धीरे वो भी आ गए थे उसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जैसे अगर आज उसको ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सही तरीके से उठाना नहीं आता है, बट लोगों को ऑब्जर्व करके, लोगों को देख के कि वो कैसे उस चीज पे वर्क कर रहे हैं, वो ये भी सीख सकता है। और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। मान लो कि वो कोई कार ड्राइव कर रहा है, कोई रोबोट तुमने बनाया, ठीक है, वो कोई कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। पहले उसको नहीं पता है अबाउट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। उसको नहीं पता है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है और वो सामने हाथ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि तुमको रुकना है। बट धीरे धीरे सीख सीख के वो ये चीज भी कर सकता है। सो ये बहुत सारे फायदे की चीजें हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आप लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो फिर इसके ऊपर वेबिनार्स भी रखवाए जा सकते हैं, बट मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। एंड हाँ, वन थिंग मैं ज़रूर कहूँगा सबसे कि अभी आप सब लोग आए हो तो बहुत ज़्यादा मतलब सुपर एक्साइटेड हो गया यार। मैं भी था अपने फर्स्ट ईयर में कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, बट यार एक रिक्वेस्ट है सबसे कि एकदम से सब चीज़ों में मत घुस जाना, क्योंकि फिर जब एकदम से आपका जो एक्साइटमेंट है वो ठंडा पड़ेगा ना, तो फिर सारी चीजें मेस्ड अप हो जाती हैं। फिर आपको समझ नहीं आता है कि मैंने ये भी सोचा था, वो भी सोचा था, प्लान नहीं होता ना, तो काफी खराब लगता है। तो थोड़ा टाइम लो अपना, ठीक है। मैं जानता हूँ काफी लोग सोच रहे होंगे गेट भी क्रैक करना है, ईएससी पे भी लगना है, ठीक है, कोडिंग भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लो, थोड़ा प्लान करो, अभी तो फर्स्ट ईयर ही है। एंड हाँ, चीजों को थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलोगे ना तो काफी अच्छे से हो जाएगा। सो दैट्स इट। अभिषेक, बैक टू यू। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू उज्जवल। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बट उसके पहले मुझे कुछ शेयर करना है एआई के बारे में। मतलब मैंने कैसे परसीव किया या फिर मैंने क्या सीखा है यूट्यूब से या आर्टिकल से। सो इंटरेस्टिंग है। अगर डिस्टर्बिंग या मतलब बोरिंग लगे तो सो प्लीज बता देना। सो द आइडिया इज कि ह्यूमंस के साथ बेसिकली ह्यूमंस जो हम लोग, अगर हम लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, रिलीजन को अगर हम लोग साइड में रख दें एक सेकंड के लिए, तो ह्यूमंस जो हैं वो, जो उनके एंसेस्टर्स थे वो थे मंकीज, मींस चिम्प्स, चिंपैंजीज, बोनोबोस, ऑल दोस थिंग्स। और आज की भी डेट में जो चिम्प्स हैं, बोनोबोस हैं, वो हमारे क्लोजेस्ट कजिन्स हैं, क्लोजेस्ट कजिन्स ऑफ ह्यूमंस। मतलब हमारी तरह वो एक्शंस मिमिक करते हैं, चिम्प्स एंड द बोनोबोस। ओके, सो द एआई, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एआई कि ये काम कैसे करता है। और बेसिकली मशीन लर्निंग, द प्रोसेस इज मशीन लर्निंग थ्रू विच वी कैन अचीव द एआई। मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग एआई को अचीव कर सकते हैं, इसलिए मशीन लर्निंग और एआई जो है हमेशा हैंड इन हैंड साथ ही साथ चलेंगे। ओके, सो द आइडिया बेसिकली ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, मींस हम लोगों को ह्यूमंस बनने में जब डायनासोर्स खत्म हुए तो जो हमारा, जो उस टाइम के एंसेस्टर्स थे वो थे चूहे जैसे कुछ जानवर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस अभी, वो जमीन पे रेंगा करते थे, चूहे जैसे कोई जानवर थे। वहां से लेके यहाँ तक का सफर मीन 60 मिलियन ईयर्स, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, 60 मिलियन ईयर्स में हम लोग वहां से यहाँ आज तक जो भी ह्यूमंस हम लोग आज बने हैं वो उतने टाइम पीरियड में हम लोगों ने कवर किया। तो जब हम लोग चिम्स थे, जब बंदर थे हम लोग, तो कैसे हम लोगों ने चीजें सीखी। मीन्स अगर चोट लग रही है तो अगर आग के पास बैठे हम लोग को गर्म लग रहा है तो हम लोग को वहां से हटना है। अगर आंख में धुआं जा रहा है तो वहां से हम लोग को हटना है, आंख बंद करनी, आंख से पानी निकलेगा। हाउ वी प्रोग्राम ऑल दोस थिंग्स इनटू अवर कॉन्शियस माइंड। मीन्स आजकल के देखा जाए तो बच्चों को भी कैसी चीजें पता चलती हैं, देख देख के पता चलती हैं। मीन्स एक एनोलॉजी है कि जो हम लोग गर्दन हिलाते हैं, मतलब ना जब करते हैं, मतलब किसी भी चीज को ना कर रहे हैं तो हम लोग गर्दन हिलाते हैं साइडवेज।
तो ये हम लोग बेसिकली सीखते कहाँ से है? ये हम लोगों के अंदर आता है चाइल्डहुड में। जब भी हम लोगों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, आप किसी भी बच्चे को देखो, जब भी उसको कुछ खाने का मन नहीं होगा, आप उसके सामने चम्मच या दूध की बोतल कुछ भी लेके जाओगे, तो वो सिर पीछे करके थोड़ा सा इधर साइड 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 में करेगा कि ये जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल ना दे। सो बेसिकली दैट इंस्टिंक्ट जो होता है हमारा, वो बड़े होकर भी किक इन करता है कि अगर हमें किसी को ना बोलना है तो हम अपनी गर्दन जो है वो साइड वेज घुमाएंगे। सो उस चीज को हम लोगों ने प्रोसेस कैसे किया? मीन्स हमने पहले अपने आप ही सीखा कि अगर ऐसे गर्दन हम लोग हिलाएंगे तो मतलब हमारे मुंह में वो खाना नहीं डाल पाएंगे अगर हमें खाने का मन नहीं है। तो बेसिकली हम सामने वाले को साइन की लैंग्वेज में ना बोल रहे हैं कि हमको ये चीज नहीं खानी है। तो अब जैसे चिम्स भी थे तो उनको ये चीज समझ में आई कि अगर पेड़ से गिरेंगे तो हमें चोट लगेगी, अगर लड़ाई करेंगे तो उनमें से हम लोगों में से कोई ना कोई एक मारा जाएगा। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रोग्राम हुई हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और धीरे धीरे हम लोग इवोल्यूशन करते चले गए। लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है कि लैंग्वेज हम लोगों ने कैसे इवॉल्व करी। मीन्स जो हमारे एक और कजिन्स थे निएंडरथल्स, जिनको गूगल करना है आप कर लेना, उनको बोला जाता था निएंडरथल्स। वो भी हमारे कजिन थे, हमारे साथ ही रहते थे कुछ साल पहले। ऐसा मतलब माना जाता है कि हम लोग इसीलिए बच पाए। जो ह्यूमंस ह्यूमंस की और भी प्रजातियां थी जो सिर्फ होमोशेपियंस आज की डेट में बची हुई है, वो सिर्फ उसी वजह से बच पाई है क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को जानते थे। हम लोगों ने उसी लैंग्वेज की वजह से चीजें सीखी हैं। उसी लैंग्वेज की वजह से हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए, आपस में कोऑपरेशन बना पाए, आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए और ग्रुप्स में रह पाए, एक सोसाइटीज हम लोगों ने फॉर्म करी और हम लोग आगे सीखते चले गए। सो ये बेसिक आइडिया प्रेमिस सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको एआई से हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोगों ने चीजें सीखी, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बीइंग मीन्स हम लोगों ने हर चीज के अलग अलग सिनेरियोज बना लिए कि अगर भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, और मतलब आप रिलेट कर सकते हैं जितनी भी चीजें हम लोग डेली लाइफ में करते हैं या फिर जो बच्चे ये सीखते हैं छोटे होने से बड़े होने तक, आपने जो जो भी सीखा है वो सब एक्शंस के बेसिस पे आप लोगों ने डेटा के बेसिस पे सीखा है। मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहना चाहूँ तो मतलब आपने डेटा देखा, मतलब मम्मी पापा से, या पहले आपने सबसे पहला जो वर्ड सीखा होगा वो अपने मम्मी पापा से ही सीखा होगा। कुछ भी सीखा होगा, आपने चलना सीखा होगा, आपने उन्हें देख के क्रॉल करना या चलना सीखा होगा। ठीक है, तो वो चीजें हमारे माइंड में कैसे आई? हमको सिखाया गया, हमको डेटा दिया गया, फिर हमने उस डेटा को एनालाइज किया, फिर हमने उस डेटा के ऊपर काम किया, उसको प्रैक्टिस की और उसको अपने माइंड में स्टोर किया। तो हम लोग एक तरीके से नेचुरल इंटेलिजेंस है, और जो हमारा काउंटर पार्ट है, जो चीज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। तो नेचुरल इंटेलिजेंस कैसे बनी? लाखों साल का टाइम लगा, मीन्स बहुत सारे 6 या 7 मिलियन ईयर्स लग गए हम लोगों को उतनी इंटेलिजेंस गैदर कर पाने में जो आज की डेट में हम लोगों के पास है। और हम लोग सबसे इंटेलिजेंट मैमल्स हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन हम लोग क्या सोशल एनिमल्स हैं। तो हम लोग वो डेटा गैदर करते चले गए और अपने आप को सुपीरियर बना लिया बाकी सब एनिमल से। तो एआई भी बेसिकली ऐसे ही काम करता है, वो डेटा लेगा। मशीन लर्निंग जो होती है वो इसी चीज का पार्ट है कि वो डेटा लेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, उस डेटा में पैटर्न्स दिखेगा कि किस जगह पे क्या काम करना है, कौन सी चीज कहाँ पे लगनी है, कौन कौन से पैटर्न्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। जैसे अभी बताया उज्जवल ने कि अगर वो ट्रैफिक वाला हाथ दिखा रहा है, या फिर अगर कोई आपका स्टॉप का साइन बोर्ड है लेकिन वो पत्तों के पीछे छुपा हुआ है, तो एआई को तो नहीं पता कि पत्तों के पीछे स्टॉप का साइन बोर्ड है, क्योंकि वो हमारी दुनिया का नहीं है, इज फ्रॉम दी वर्चुअल वर्ल्ड। तो उसको ये चीज सिखानी पड़ेगी कि हाँ आपको पोल देखना होगा, आपको स्टॉप का साइन देखना होगा, आपको पत्तों के पीछे भी एनालाइज करना होगा। सो दिस इज बेसिकली द एआई इवॉल्व्स। और जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को तो मिलियन ईयर्स लग गए, बट एआई के साथ हम लोग जिस स्पीड में जा रहे हैं, हम लोग उसको जिस स्पीड में डेटा फेड कर रहे हैं, मिलियन ईयर्स मैं कहूंगा कि सेंचुरी भी नहीं लगने वाली है जब हमारे पास एक फुल फ्लेश्ड एआई टेक्नोलॉजी होगी जो अपने आप ही इमोशनल, मेंटल और एप्टीट्यूड जितने भी डिसीजन है वो अपने आप ले सकती है। ओके, तो यही चीज थी जो मुझे शेयर करनी थी। और आगे हम लोग आईओटी देखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभय सर रिप्रेजेंट करेंगे। अभय। Hello. Hi guys, good morning. I'm audible? Yes, sir. You are Yes, sir. I'm audible. voice is not clear, sir. No, clear. Hello. Hello. You can share. Yeah. Okay. Thank you.
Actually, myself, Abhay Gupta, I am a student of second year IT branch. गाइस हमने आप लोगों को इस सेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बता चुके हैं और हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए हो कि क्या इतना सब कुछ बता दिया। और एक्चुअली में ये काफी एडवांस टॉपिक हैं और आपको धीरे धीरे आप जैसे बढ़ेंगे तो आपको उनकी समझ आने लगेगी। आप लोग बोर भी हो रहे होंगे कि क्या इतना सब कुछ बता दिया आज के सेशन में। कोई नहीं, हमारा आज का जो पॉइंट था वो यही था कि में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उनकी बेसिक आइडिया दे सकें। सो आज मैं आपको मेरा जो टॉपिक है वो है आईओटी और मैं चाहता हूँ आप इसमें बेसिक नॉलेज ले सकें आईओटी के बारे में। आईओटी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप आईओटी है इसकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है, नाम से ही आप देख सकते हैं कि समथिंग दैट रिलेटेड टू इंटरनेट, है ना। कोई भी चीज है जो इंटरनेट से जुड़ के वर्क कर रही है उसी को हमने एक आईओटी नाम दे दिया है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके। और ये फर्स्ट टाइम जो ये टर्म कॉइन किया था वो किया था आस्थॉन, केविन आस्थॉन ने। आप गूगल पे सर्च करना, इनके बारे में बहुत आपको स्टोरी मिलेगी कैसे इन्होंने इस टर्म को ऑर्डिनेट किया है इन 1999 में। और IoT refers to connectivity among various things and with the internet. Okay, and things here refer to a physical object containing an embedded system. Embedded system means electronic circuit within it. Okay. और ये तो हो गया IoT के, क्या IoT है, कैसे ऑर्डिनेट हुई है। और हम थोड़ी बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। इसकी हिस्ट्री के बारे में, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स फर्स्ट बिकम पॉपुलर इन 1999, ये मैंने आपको अभी बताया, थ्रू द ऑटो आईडी सेंटर एट MIT एंड रिलेटेड मार्केटिंग एनालिसिस पब्लिकेशन आर। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है इसकी। और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की थ्रू इसका ऑर्डिनेट हुआ था। वो ये समझ लीजिए इसके लिए नेसेसरी है IoT को लर्न करने के लिए। अब हम देख ली, अब हम मैं गाइस आई एम ऑडिबल ना? यस सर। यस सर। ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं IoT है क्या, IoT के बारे में है क्या। IoT एक प्लेटफॉर्म मान सकते हो आप। IoT क्या है, एक प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कनेक्ट एवरीडे थिंग्स व्हिच कैन एम्बेडेड विद आइदर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सेंसर टू द इंटरनेट से कनेक्शन के थ्रू। दिस इज टर्न इनेबल अस टू कलेक्ट एज वेल एज एक्सचेंज द डाटा। ओके। और व्हेन वी से थिंग्स, तो थिंग्स इज एनीथिंग और एवरीथिंग। और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने हाउस का। और मैं हाउस में क्या, वी कैन कनेक्ट माय लॉक, कनेक्ट माय AC। तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म मान लिया मैंने, उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट हैं। AC हो गया, लाइट हो गई, मेरी फैन हो गया। तो यही एक प्लेटफॉर्म है IoT। और अगर मैं आपको सिंपल बहुत मतलब एक बेसिक आइडिया दूं जिसको आप क्विकली इस चीज को रियलाइज कर पाओगे कि व्हाट इज IoT। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में GPS ट्रैकिंग रहता है ना। तो मोबाइल क्या है, एक हमारा डिवाइस। मैंने पहले ही बोला कि IoT क्या है, एक नेटवर्क है ना, जो कि थिंग्स, इसमें क्या है, जो थिंग्स है वो एम्बेडेड रहती है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सेंसर से। तो एक मोबाइल क्या है, डिवाइस है, और GPS आप एक सेंसर मान के चलिए। और आप क्या करते हैं, उस GPS सेंसर को एक्टिवेट करते हैं ट्रैकिंग के लिए, रूट फाइंड आउट करने के लिए थ्रू द इंटरनेट। दैट्स ऑल IoT। एक बेसिक आइडिया मिला हुआ IoT का। और आपको और जानने के लिए आपको YouTube पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। और बहुत एडवांस टॉपिक है ये। थैंक यू। Okay, Astik, over to you. You are further continue the session. Okay, so the next thing and I think probably the last thing that we'll be discussing of the tech stack is web development.
and Durgesh will represent that. Durgesh, are you available? Yes, sir. Okay, you can begin. Durgesh, you can begin. तो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट के वर्ड से हमको समझ में आता है कि वेबसाइट अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी काउंसलिंग वगैरह कराई होगी, फॉर्म फिल करना होता है, तो ये सभी हम लोग तो इस वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेनली चीजें होती हैं, जो कि एंड Here are you? पेंडिंग हेलो दुर्गेश, हेलो आर यू मीटिंग? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यू कैन डिस्कनेक्ट. ओके, वेट. हेलो अभिषेक, आई थिंक दुर्गेश का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, दुर्गेश का नेटवर्क प्रॉब्लम है. कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट. Okay, ओके no problem. गाइस, वेब डेवलपमेंट जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में आपको एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप रोज ब्राउज करते हो और आपको नेट पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, और आपको डिफरेंट कंटेंट आप जो जिसको भी फाइंड आउट कर रहे होते हो, आप उसको इजीली आप वेबसाइट के थ्रू से उस तक अप्रोच कर लेते हो. तो उस वेबसाइट को नेट तक इंटरनेट पे है वो, उसको वहां तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें वेबसाइट डेवलप करनी पड़ती है उसको वहां पे. तो वेब डेवलपमेंट क्या है, ये एक पार्ट है कैसे वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है. ठीक है, उस वेबसाइट को आप डिजाइन करेंगे, आप कौन कौन सी कोर सब्जेक्ट हैं इसके लिए लर्न करने पड़ते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बहुत सारे टर्म्स जो उसमें आप वेब डेवलपमेंट पार्ट में पाते हो. ये सारी चीजें जरूरी हैं एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए. और जब आप वेबसाइट डिजाइन कर लेते हो, फिर उसे कैसे आपको इंटरनेट पर लैंड कराना है, उसके लिए आपका डोमेन आप लेते हो. आपने बहुत सारे .com, .in ये सारी चीजें देखी होंगी, ये डोमेन के अंतर्गत आती हैं, और उसके बाद उसको आप इंटरनेट पर लैंड कराने के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करा देते हो, और फिर वो वेबसाइट आपकी इजीली अप्रोच है, उसके पीछे का पार्ट रहता है. और आगे हमारे DAC काफी एक कुछ टाइम पहले एक वेब डेवलपमेंट पे एक वेबिनार भी कराया था, और आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वो चीज के लिए, जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट ट्रायंगल आप देख सकते हो स्क्रीन पे, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS. एक्चुअली वेबसाइट डिजाइन करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे आपको वहाँ कोड लिखना है, कैसे आप कंटेंट के लिए क्या करोगे, उस पे आप क्या एनिमेशन डालना है, उसके लिए क्या करोगे. तो जो जावास्क्रिप्ट है, और आपकी डिजाइनिंग पार्ट कवर करने के लिए CSS है. तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन के बाद आप इजीली एक वेबसाइट को अपने एंड यूजर के लिए प्रोवाइड करा सकते हो. थैंक यू. और हाँ, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई भी, आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. Yes, is my voice is clear? Yes, sir. So basically वेब डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग 3
का यूज़ करते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से समझे तो जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है, मीन्स हमारी बोन्स कहाँ पे किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये हमारा HTML के पार्ट में आता है। HTML किसी पेज के कंटेंट को बताता है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा। एंड CSS को अगर हम देखें तो ये उसको ब्यूटीफाई करता है। इट इज़ लाइक अ ब्यूटी पार्लर फॉर द HTML कोड। सो अगर हम अपनी बॉडी पार्ट में देखें तो हमारी जो स्किन्स हैं, हेयर्स हैं, जो हमको ब्यूटीफाई करती हैं, हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, ये सभी हमारे CSS का एक पार्ट आएंगे। और जावास्क्रिप्ट, सो ये मेन एक चीज़ होती है जो कि लाइक अ ब्रेन, ये हम लोग को बताती है कि कोई वर्क क्या कैसे वर्क करेगी। तो एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोग अपनी एक टाइप से प्रोग्रामिंग करते हैं। और तो इसके पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि हमारी वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग क्रोम पे वर्क कर रहे हैं, तो हमने अगर हम लोग क्लाइंट होते हैं, तो अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वेबसाइट से कि मान लीजिए हमने लिखा www.dscrecbiznow.com, तो ये हमारे वेब सर्वर्स के पास जाएगा। तो सबसे पहले वेब सर्वर्स में यस You can zoom the PPT. इज माय वॉइस इज क्लियर? Zoom it. Your voice is clear. I'm saying that you can zoom in your PPT. ओके ओके। Your voice is not clear, sir, right now. सो बेसिकली अब हम देखेंगे कि हेलो You can continue to do this. सो से हमने लिखा है www के पास, जो कि किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड। तो हमारा वेब सर्वर इसके बैक एंड पे वर्क करेगा, जो कि कोई भी लैंग्वेज सकती है, जैसे PHP, पाइथन, Node.js। ये भी आप लोग आगे जब इस पे वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वेब सर्वर्स इनके वर्क करके हम लोग को एक फ्रंट एंड देता है, क्लाइंट को एक फ्रंट एंड बैक करके देगा रिटर्न्स में। तो फ्रंट एंड में हमारा क्या होता है, बेसिकली यही होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन सभी का एक बंडल। तो जैसे कि हम लोग उसके बाद में dscrecbiznow.com जब डालेंगे तो इसकी एक वेबसाइट खुल के आएगी, जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होगी अवेलेबल, दैट इज 404। तो हम लोग का एक वेबिनार भी हुआ अभी लास्ट मंथ, जो कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। एंड जैसा मैंने बताया था, HTML एक कार के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक कार हम लोग देखते हैं तो उसकी जो मेटेलिक बॉडी है, उसको जो पहले से दिमाग में एक आइडिया बनाया था इसकी मेटेलिक बॉडी कैसी होगी, तो वो हमारा आयरन इसमें क्या यूज हुआ है, कैसे ग्लास यूज हुआ है, तो वो सब हमारा आएगा HTML में। और उसका कलर क्या होगा, हेडलाइट्स का साइज क्या होगा, किस तरह की उसमें हम डिजाइन करें, ये सभी आएगा CSS के पार्ट में। और अगर हम आगे चले तो उसके जो इंजन है, ब्रेक्स कैसे वर्क करेंगे, क्लचेस कैसे वर्क करेंगे, इन सभी का वर्क आएगा हमारा जावास्क्रिप्ट में। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारा एक ब्रेन होता है, और CSS हमारा ब्यूटीफाई करने का एक एलिमेंट होता है, और HTML हमारा होता है कि कंटेंट उसके अंदर क्या क्या होगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू। Now it's your turn. आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको आस्क आप या तो चैट में लिख सकते हैं, या फिर वन बाय वन बाय ओपनिंग योर माइक यू कैन आस्क दी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स। और चाहते हैं यार, ओके, सो यू कैन बिगिन। प्रेजेंटेशन दे रहा था मैंने, उसी टाइम बताया था कि आपको मतलब अब जब अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको सी तो सिखाई जाएगी, मतलब वो कोर्स में आप क्या करते हैं जो वीडियो उन्होंने कॉपी में बना लिया, उसकी वर्किंग चेक कर ली कॉपी पे ही, और फिर उसको मतलब कि
सामान ले, रेजिस्टेंस ले, कैपेसिटेंस ले, उन सबको बना के चेक कर रहे हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये बहुत लंबी काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मैटलैब में क्या करते हैं कि उसमें हम लोग कोडिंग का यूज करके एक सिमुलेशन जनरेट करते हैं, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग का सर्किट बना है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कितना हम लोग एनर्जी लगेगी, कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो मैटलैब का यूज यहीं पे आता है। तो ये भी हम लोग उसमें भी कोडिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें कोडिंग नहीं करनी है, उसके लिए हम लोग कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैटलैब बेसिकली यही है कि हम लोग कोई भी सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सर्किट हम लोग का प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सर इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, मोबाइल में या लैपटॉप में? मोबाइल में तो एक्चुअली वो हो जाएगा डाउनलोड, पर प्रॉपरली वर्क करेगा नहीं। तो लैपटॉप पे मैटलैब सर्च करके आपको साइट मिल जाएगी, वहीं पे आपको इसके सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सर वो सर्वर सर ने बोला 6 GB का है। हाँ वो बड़ा है, मुझे भी पता है, करना और पड़ेगा। फोन पे वो रन भी नहीं करेगा एफिशिएंटली, आप लैपटॉप पे ही करें वो प्रेफरेबल। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस बेसिकली सी के बाद आई थी, और सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ये आपको आगे सिखाया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा। सी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सीपीपी जो आपकी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और बस यही है कि थोड़ी सी एडवांस्ड है। प्लस प्लस का सिंबल जो कंप्यूटर साइंस में होता है, मतलब एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया हमने। तो सी आई फिर उसके बाद सी प्लस प्लस आई, मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़े सिंटैक्स बदल जाते हैं, थोड़े पैकेजेस बदल जाते हैं। हेलो सर। हम्म, हेलो। यस हाँ सर, मतलब मोबाइल में सर कोडिंग को कैसे रन करें? मतलब अभी तो कंप्यूटर लैपटॉप खरीद नहीं सकते, मतलब खरीदेंगे अभी, मतलब टाइम लगेगा। अंकित सर ने आपको बताया ना, टर्बो सी ड्रॉइड करके एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिए। उसमें कोड करने के लिए एक स्क्रीन आएगी, आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर आपको बेसिक प्रोग्राम जो आप यूट्यूब से देख सकते हैं या डाउट्स पूछ सकते हैं जिस भी सीनियर के साथ आप कांटेक्ट में हैं। तो सर उसका डाउनलोड कर, मतलब लिंक भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। टर्बो सी ड्रॉइड। हेलो हेलो प्रद्युम्न। हाँ सर बोलिए सर। देखिए आप में से बहुत से ऐसे हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक कोई भी कोडिंग नहीं पढ़ी है, और रेगुलरली वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सर हमको कैसे, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास पीसी नहीं है, हम कैसे कोडिंग करें और कैसे इसमें मतलब इस सब्जेक्ट में मूव ऑन करें। तो आप ऐसा कीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी से स्टार्ट कीजिए, और आप मोबाइल से भी बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे एक ऐप मिलेगा सोलो लर्न, आप सोलो लर्न ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां से, और डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, आप उसमें सी में रजिस्टर कर लीजिए खुद को, आपको वहां पे इनबिल्ट कंपाइलर मिल जाएगा, और वहां पे आप इजीली कोडिंग कर सकते हो, और नो प्रॉब्लम। आपको पहले से आपने नहीं पढ़ी है कोई कोडिंग, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम, आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, और बस अपना टारगेट इतना रखिए, जिसको भी कोडिंग इधर साइड आना है कोडिंग पार्ट में, बस इतना इंश्योर कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में अपना इतने कैपेबल हो जाएं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आप उसमें मास्टर हो जाएं। एक बार आप सी कर लेंगे ना, तो आपको बेसिक सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, और सारी लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स सेम होते हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है, ठीक है। तो आप बस सोलो लर्न मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ नाम, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप मोबाइल में इजीली कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, सोलो लर्न किसी ने लिखी, हाँ आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सब लोग जितने भी फर्स्ट ईयर में जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं है वो सब लोग कर लीजिए, और आराम से कोडिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर, आपका अगर कांटेक्ट एक्चुअली सिर्फ बॉयज हैं क्या, नारी शक्ति क्यों शांत है भाई? पूछो कुछ, आप लोगों को डाउट नहीं है? चैट में लिख दो या माइक ओपन करके पूछो, डाउट तो होगा ही। हेलो तो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा मीटिंग तो हर समय नहीं होगा, बनाया जाएगा। तो अगर आपने फीडबैक फॉर्म भरा होगा तो आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास आ गया होगा, तो हम लोग इन सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे
वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी लिखना है। और आप जाके डीएससी क्लब का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको फॉलो कर लो। वहां से आपको सीनियर्स के इंस्टाग्राम पेजेस वो सब मिल जाएंगे, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, कांटेक्ट नंबर अगर ऐसे रहे तो। अच्छा जो अच्छा। है हेलो सर, सर फीडबैक फ्रॉम कहाँ से? वो पहुंच जाएगा आपके पास, जैसे इस मीटिंग का लिंक पहुंचा था वैसे ही फीडबैक पहुंच फ्रॉम, जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। Excuse me, sir. हम्म, Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So I have learned about Java and first year में सर कितना पढ़ाया जाता है जावा में, मतलब किस टॉपिक तक? जावा तो नहीं होगी आपके फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यार जावा तुमने पढ़ी है, हाँ, तुम्हें वो लूप्स तो पता लूप्स के बारे में और वेरिएबल्स कांस्टेंट ये है, एरे वगैरह हाँ वो सब सब पता है। वो हर लैंग्वेज में, मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था मैंने तभी बोला था हाँ। कि हर लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट सेम है। आप सी में भी वेरिएबल्स पढ़ोगे, कांस्टेंट्स पढ़ोगे, सेम चीज है जो आपने जावा में पढ़ी थी। तो Yes, जावा sir. जावा जावा तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी हो सकती है, अभी पता नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक स्टार्टिंग वो सी से ही करनी होगी। Okay, sir. So which type of laptop for coding is good? Any laptop. अगर आपको बेसिक कोडिंग करनी है, अगर आपको बेसिक कोड रन करना है, एनी लैपटॉप, लिटरली कोई भी लैपटॉप उठा लो। बट अगर आपको नया लेना है, अगर आपके पास है पहले से, आप उसी पे स्टार्ट कर सकते हो कम से कम। अगर आपको नया लेना है तो कोई भी i5 से ऊपर ही लेना, क्योंकि उससे नीचे लेने का सेंस नहीं बनता। और 4 GB रैम तो आजकल कहीं नहीं चलती, तो मिनिमम 8 GB, और SSD स्टोरेज हो तो और बढ़िया है वैसे। और अगर नहीं है, कोई भी लैपटॉप पड़ा हो घर पे और उस पर शुरू कर दो, तो वेट ना करो कि लैपटॉप नया आएगा हम उस पर स्टार्ट करेंगे। सर जिसको कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करना है उसके लिए? कोडिंग नहीं करना है तो मत करो यार, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। सर आप इलेक्ट्रिकल से हो? नहीं, आईटी। तो इलेक्ट्रिकल से कोई है सर नहीं, लोग का सीनियर यहाँ पे? हाँ, ऋषभ सर। सर हमको मतलब कि कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है सर, मतलब कि फर्स्ट ईयर या मतलब जो यूपीएससी का सिलेबस होता है उसके बारे में कुछ आप लोग तैयारी या कोई आप लोग का करता होगा तो बताइए एक्चुअली सर। ये मीटिंग डीएससी के ये बारे में है, अगर हाँ इसका कभी वेबिनार लगेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये अभी सिर्फ कोडिंग के ही पर्पज से मीटिंग सर हुई थी। सर इलेक्ट्रिकल में सर कोई जरूरी है कोडिंग ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर जितने स्किल्स आएंगे उतना अच्छा है प्लेसमेंट्स के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें बस इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है और दूसरा बंदा उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है, टेक्निकल नॉलेज भी है, कोडिंग भी आती है, तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी इंटरव्यूज में, प्लेसमेंट्स में। ओके। सर कोई सीनियर सिविल से है? सिविल से तो आई डोंट थिंक कोई सिविल नहीं से कोई है, है। आईटी और इलेक्ट्रिकल से ही है। फर्स्ट ईयर सिलेबस में कौन कौन सी लैंग्वेज है? सी है बस फर्स्ट ईयर में, तो और कोई नहीं है, सिर्फ सी। Sir, I know about Java. Divyanshu, Dishu. You can join DSC. There's no dependency that you are from civil or electrical. Everyone can join DSC. अच्छा, गोविंद ने पूछा था, एंड इन विच सेमेस्टर वी हैव मोस्ट यूज ऑफ पीसी और लैपटॉप? यार तुम आज से स्टार्ट कर दो, तुम आज से तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम जिस दिन से स्टार्ट कर लो उस दिन से बढ़िया है। मतलब सेमेस्टर का इंतजार ना करो कि थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा तब मैं खरीदूंगा, या फर्स्ट ईयर में कोई नीड नहीं होती है। तुम्हें अपना काम करना है, तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तुम उसी के अकॉर्डिंग चलो, और भी सीख लो नया कुछ। सर आईटी क्या है और उसका यूजर्स कहाँ पे है? जो अभी ये मीटिंग जो पूरी हुई थी वो पूरी आईटी के बारे में थी और उसी के यूजर्स के बारे में ही थी। IT का यूज इज एवरीवेयर। आप और हम लोग जो बात कर पा रहे हैं वो भी बेसिकली आईटी की वजह से ही कर पा रहे हैं। ओके सर। हेलो सर, लैंग्वेज जो है सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, ये सब C++ जो मेरे पार्ट्स में क्यों जाता है, इसको डिवाइड क्यों किया है? जबकि कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आई फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकले। तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरीके के शूज आ गए मार्केट में, एडिडास ने उतार दिए तो उनका कोई कंपटीटर नहीं आएगा। रीबॉक भी अपने शूज लाएगा, नाइकी भी अपने शूज लाएगा, है ना, एक्शन के भी अपने शूज आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक लैंग्वेज आ गई तो उनका कोई कंपटीटर नहीं होगा। किसी और को नहीं अर्न करना आईटी मार्केट में। तो ओरेकल ने जावा निकाली तो किसी बेल ने सी लैंग्वेज निकाल दी, तो ऐसे उनके बीच में भी कंपटीशन है।
और हर लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के ऊपर कोई ना कोई अपर हैंड है। किसी चीज में ये चीज अच्छी हो जाती है, किसी चीज में वो चीज अच्छी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज थी तो दूसरे की नीड क्यों पड़ी। हर चीज के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने बेनिफिट्स हैं। सर थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में आइडिया दे दीजिए। किसके बारे में? प्लेसमेंट के बारे में। वॉइस नहीं क्लियर आपकी, आप मैसेज टाइप कर दो तो सही है। प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में तो अभी हम लोगों को कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन था हम लोगों के टाइम पे जो पहला वाला था सेकेंड ईयर में हम लोग, तो उस टाइम तो हम लोग घर ही में थे लॉकडाउन की वजह से। एक्चुअली तनुश्री इज आस्किंग सर आई डू नॉट नो अबाउट जावा सी, देन सर वेयर शुड आई स्टार्ट। आप बेसिकली कोई भी आप यूट्यूब ट्यूटोरियल उठा ले, कोड विद हैरी का मैंने बताया था, उनके सी पे, जावा पे, सी प्लस प्लस पे, पाइथन पे, हर लैंग्वेज पे उनके 60-70 वीडियो की एक पूरी प्लेलिस्ट है। आप उससे स्टार्ट करो, बहुत ही बेसिक से बहुत ही स्टार्टिंग में आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे और बेसिक्स भी क्लियर करेंगे, प्रोग्राम भी आपको साथ में बनवाते जाएंगे और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे। कोई भी प्लेलिस्ट आप उठा लो। You can also use Geeks for Geeks app. हाँ एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज या कोई भी डाउट हो, आप उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स नाम की है, आप कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वहाँ पे सब सारा आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में हम लोग अपने जो हमारा ऐप है डीएससी क्लब का, डीएससी बिजनेस जिससे पे मिलेगा, वहाँ पे भी सारे डाटा फाइल्स जो कुछ भी है वहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। जैसे सी है, सी प्लस प्लस, पाइथन, अदर लैंग्वेज के नोट्स, ट्यूटोरियल के लेक्चर एंड अदर यूट्यूब लेक्चर, जो कुछ भी प्रेफर करना है आपको, सारी डिटेल्स वहाँ पे ऐड कर दी गई है। आप वहाँ जो है क्लब का आप डाउनलोड करके वहाँ पे सारे सब कुछ देख सकते हैं, तो आपको और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। और इसके थ्रू आप जो कुछ भी आपका डाउट होगा आप वहाँ से भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम सबको। इसके बाद हम अपना जो कुछ भी होना होगा वेबिनार या फिर कोई सेशन अरेंज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, इसके डिस्कशन पे, और हम बात कर सकते हैं इससे। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके पूछ वापस बंद कर दे ताकि अंकित होल्ड फॉर सेकंड। एक्चुअली हमारे थर्ड ईयर के सीनियर्स भी हैं, वो आपसे कुछ अगर बात करना चाहें। विकास सर, रजत सर। हेलो सर। हेलो 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 सर, डिवीजन लोगो में क्या करना होता है? फर्स्टली गुड मॉर्निंग। हाँ राहुल, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी? सर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में क्या करना होता है? क्या करना होता है? सीखना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। मतलब कैसे अप्लाई करें? उसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको सीखना होगा और वो आपको सेकंड ईयर में सिखाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और थर्ड ईयर में आपको सिखाया जाता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, ओके सर। हेलो सर। सर ये मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, बट ये हम लोग के लिए अवेलेबल है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है। ओके सर। हेलो सर। हाँ हर्ष सर, जैसे जब तक अभी तक घर पे बैठे हैं तब तक सर कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, मतलब बेसिक जो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट? देखो, डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो सब डिफिकल्ट है, और स्टार्ट कर दोगे एक बार सीखना तो सब इजी है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको आगे कंटिन्यू करना है उस लैंग्वेज को कर सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में हैं? नो सर, आईटी में सी प्रोग्रामिंग आती है आपको? जी नहीं सर, क्योंकि अभी तक जिसमें पढ़े हैं तो उसमें कोई भी लैंग्वेज अभी तक बताई नहीं गई है, इसलिए तो हमारा तो स्टेम न्यू ही है। ओके, तो आप सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, इलेक्ट्रिकल के लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए भी फिलहाल सी प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट कीजिए। और सर सिविल वालों के लिए? सभी के लिए सजेस्ट करूंगा सी प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट करें, बिकॉज आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और आपकी प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आप इजिली जिस लैंग्वेज पर चाहे स्विच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू सर। यस एनी ओके सो आई थिंक बस इतना ही था, और भी जो डाउट्स हैं जल्दी से क्लियर करिए क्योंकि टाइम भी हमारी मीटिंग का आप हो चुका है। हेलो सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ भाई सर जो भी आप ऐप वगैरह बता रहे हैं हमें स्टार्टिंग से, वो आप एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कट रही है नेटवर्क की वजह से। बिल्कुल लास्ट में एक बार शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? सर एक सेमेस्टर में कितने एग्जाम्स होते हैं? कितने? सर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंजेस होते रहते हैं सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। एक सेम में आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट मिलेंगे।